السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزشتہ کی طرح آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 121 تا 124 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تفسیر: اس میں یہود کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ نہیں، مایوس کیا جاتا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز میں بمقام سوس ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ یہود و نصارہ و مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں، ان میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہیں۔ مجاہد نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بار دور کرنا،
मुँह ज़ेर नाफ की सफाई, खतना, पानी से इस्तिंजा करना, ये सब चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वाजिब थी और हम पर इनमें से बाज़ वाजिब हैं, बाज़ सुन्नत। मसला यानी कि आपकी औलाद में जो ज़ालिम यानी कि काफ़िर हैं, वो इमामत का मनसब न पाएँगे। मसला इससे मालूम हुआ कि काफ़िर मुसलमानों का पेशवा नहीं हो सकता और मुसलमानों के इसका इत्तिबा जायज़ नहीं। बैत से काबा शरीफ मुराद है और इसमें तमाम हरम शरीफ दाखिल है। अमन बनाने से मुराद अमन बनाने से ये मुराद है कि हरम काबा में कत्ल व गारत हराम है या ये कि वहाँ शिकार तक को अमन है। यहाँ तक कि हरम शरीफ में शेर, भेड़िए भी शिकार का पीछा करते छोड़कर लौट जाते हैं। एक कौल ये है कि मोमिन इसमें दाखिल होकर अज़ाब से मामून हो जाता है। हरम को हरम इसलिए कहा जाता है कि इसमें कत्ल, ज़ुल्म, शिकार हराम व ममनू है। अगर कोई मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहाँ इससे तरोज़ ना किया जाएगा। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की बिना फरमाई और इसमें आपके कदम मुबारक का निशान था। इसको नमाज का मकाम बनाने का अमर इस्तजाब के लिए है। एक कौल ये भी है कि इससे इस नमाज से तवाफ़ की 2 रकअतें मुराद हैं। यहाँ तक इसकी तफसीर तमाम होती है। अब हम सूरा अर्रहमान का जो बकिया इसके अंदर दर्स कुरान के अंदर पढ़ रहे थे, तो उसका बकिया जो है वो ये है कि आले दाऊद जिस तरह हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अशरी को कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें औलादे आले दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता फ़रमाई और इसके बाद इसकी तफसीर कुछ इस तरह की है कि इसके दर्स कुरान के अंदर कि लिहाज़ा कुरान पाक के अल्फ़ाज़ का जो जो एक म्यूज़िक है और उलमा ने इसको म्यूज़िक का लफ़्ज़ इसकी जो हुस्न है, अल्फ़ाज़ का जो हुस्न है उसके लिए इस्तेमाल किया है। जहाँ तक हुस्न मानवी है, वो तो हर लफ्ज़ में है, जहाँ तक हुस्न सौती, ज़ाहिरी, हुस्न लफ्ज़ी ये अपने क्लाइमेक्स पर नज़र आएगा। सूरा रहमान में तो कुरान पाक इस एतबार से भी ये मुमताज़ है कि इसकी 4 आयात पर तवज्जो करेंगे, तो आपको अज़ीम हक़ाइक़ नज़र आएँगे। जहाँ ये कुरान मजीद के हुस्न सौती और हुस्न लफ्ज़ी का महराज है, वहीं इसकी पहली 4 आयात में 4 चोटी की चीज़ों का ज़िक्र है। पहली आयत क्या है? अर्रहमान, एक आयत हो गई। अर्रहमान क्या है? अल्लाह का नाम क्योंकि अल्लाह पाक का सबसे प्यारा नाम अर्रहमान, इसका मादा क्या है? रहमत। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? रहमत खुदावंदी की। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अपने अमल की वजह से उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक अल्लाह ताला रहमत खुदावंदी से उसकी दस्तगीरी न फरमाए। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया था कि क्या हज़ूर आप भी जवाब आपने जवाब में फरमाया कि कोई शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा महज़ अपने अमल की वजह से कि जब तक रहमत खुदावंदी दस्तगीरी न फरमाए। पूछा गया कि क्या आप भी? दोबारा पूछ लिया। जवाब फरमाया हाँ, मैं भी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत खुदावंदी के मोहताज हैं, तो हम और आप हमें फ़िक्र करनी चाहिए। अर्रहमान इसके बाद दूसरी आयत है अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान पाक सिखाया, यानी कि रहमत खुदावंदी का सबसे बड़ा मज़हर कुरान और रहमानियत का सबसे बड़ा मज़हर कुरान। जो इल्म भी इंसान को अता हुआ, वो किसने दिया? अल्लाह ताला ने। साइंस का इल्म वो किसने दिया? अल्लाह ताला ने। ये उसी की देन है और होती रहेगी। कुरान पाक में इरशाद होता है कि ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यानी कि मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में से चोटी का इल्म कुरान अल्लाह के नामों में चोटी का नाम और रहमान। अल्लाह ने इंसान को जो कुछ सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये है कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया?
आसमानों और ज़मीनों को किसने पैदा फरमाया? फ़रिश्तों को किसने पैदा फरमाया? क्या मतलब? खलक़ल इंसान, उसकी तमाम मखलूक़ात में से उसका क्लाइमेक्स जो उसकी तमाम मखलूक़ात की मेराज है, उसकी तख़लीक़ का नुक़्ता एरूज इंसान है। ये है जो मसजूद मलाइक बना है। तो तख़लीक़ में से सबसे ऊँची तख़लीक़ इंसान की ठहरी। इल्मों में सबसे ऊँचा इल्म कुरान का और अल्लाह के नामों में से ऊँचा अ, जो नाम है वो अर्रहमान है। अल्लाह ताला सूरह अर्रहमान के सदक़े हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। और मैं अपने तमाम नाज़रीन को इस्तदा करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को पढ़ने की और समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े और सूरह अर्रहमान जो जिसको कुरान कहा गया है, अल्लाह ताला सूरह अर्रहमान के सदक़े आज जुम्मा के दिन है, जुम्मा के दिन के सदक़े अल्लाह ताला तमाम नाज़रीन के हर किस्म के सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानों की परेशानियाँ दूर करे। और अल्लाह ताला जो बीमार हैं जहाँ कहीं भी हैं, घरों में हैं, कहीं अस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत खुदाबंदी के सदक़े अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला रहमत खुदाबंदी के सदक़े जो सूरह अर-रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने बार-बार ज़िक्र किया है, इनके सदक़े अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के जो मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग फरमाए। और अल्लाह ताला आपको कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जाते-जाते मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि जो लोग भी इस मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ दे कि आप इस पैगाम को फैलाने में मेरी मदद करें। क्योंकि ये जो नेकी का काम आता है, इसको ये आहिस्ता-आहिस्ता फैलता है। क्योंकि लोग इस किस्म की चीज़ों की तरफ आने के लिए कोई 8-10 मिनट भी आजकल लोगों के पास नहीं है कि जो लोग देखें। टिकटॉक के अंदर तो मुझे लोग बहुत फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुरान पाक का ये दर्स होता है, ये 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट का हो जाता है और इसको लोग जो है ना बहुत वो अपने आप को आर समझते हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरी आप तमाम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह ताला इस पैगाम को फैलाने में आप मेरी मदद करें। क्योंकि ये एक नेकी का काम है, सदका जारिया है। मेरे लिए और आपके लिए इंशाल्लाह ये मग़फ़िरत का बाइस बनेगा। और क्योंकि अगर मेरे और आपसे कोई कुछ कुछ लोग भी अगर इनको हिदायत मिलती है और अल्लाह ताला तो मेरे और आपके इंशाल्लाह मग़फ़िरत का बाइस बनेगा। और मैं आपसे ज़रूर इस्तदा करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आमीन सुम्मा आमीन।